Hello, dear students, and welcome to EMM English Master Mahato. I am Ajay Kumar Mahato, and today I have brought for you the previous year English question paper of 2024. It is of class 10 UP board, of course. The series you can see here 817 HL, and the subject code is 917. It consists of 70 marks in total, the written exam, right? Let's see what are the questions. In part A, you have all 20 MCQ questions in part A, right? And then the part B follows after that. Let's see. Part A, question numbers 1 to 3. Read the following passage carefully and choose the correct option to answer the questions that follow. So this is a unseen passage given. We need to read it and then answer. We went for a walk in the country. Look at the word country. Okay, look at the word country here. Country has two meanings. One is, of course, desh, and the other meaning of the word country is rural, rural area, the village area, right? Remember this. We went to see an exhibition. प्रदर्शनी देखने गए थे in the town, right? It was held in the town. We saw a temple surrounded by thick mango trees. So pay attention to every little detail. We saw a temple there and it was surrounded by thick mango trees. It was held in a green park, right? That exhibition, what was held? The exhibition was held in a green park. The park was surrounded by beautiful shops. All around the park there were beautiful shops. सुंदर सुंदर दुकानें थी पार्क के चारों ओर. Light and song filled the whole atmosphere. There was light and song and music, right? Just as it happens in an exhibition जहाँ पर मेला लगता है, ऐसे ही कुछ दृश्य नज़ारे देखने को मिलते हैं. The chirping of birds filled the air, right? तो पक्षियों की गुनगुनाने की, चहचहाने की, गाने की वो आवाज़ हवा में जैसे बज रही थी. At a distance, दूर में, कुछ दूर में, men and women were walking in the fields. They were walking around. They were crowding the stalls, दुकानें जो लगी थी उसमें बहुत भीड़ जुट रहा था लोगों की, men and women की भीड़. Small children were playing under the trees. छोटे बच्चे पेड़ों के नीचे खेल रहे थे. They were sitting on the merry-go-round. merry-go-round में वो लोग बैठ रहे थे. Some women were at a well drawing water. Some women were at a well drawing water. So they were at a well, कुएं के पास कुछ महिलाएं दिख रही थी जो कि पानी ले रही थी उस कुएं से. Some boys and girls were looking at a small open circus. So there was a circus also going on, and some small boys and girls were looking at that circus. All was green and peaceful. All was bright and gay. So all was green and peaceful, shantipurn. All was bright and gay, ujjwal और खुशियों से भरा, happy, joyous occasion, right? So now we have read this unseen passage and let's solve the MCQs. What surrounded the temple which was held in a green park? वो कौन सी चीज़, what surrounded the temple, temple को क्या चीज़ घिर के रखे थे, which was held in a green park, right? What surrounded the temple which was held in a green park? तो टेम्पल को क्या चीज़ घेर के रखा था? वी सॉ टेम्पल सराउंडेड बाय थिक मैंगो ट्रीज. तो थिक मैंगो ट्रीज जो है, मैंगो ट्रीज ये वाला उत्तर होना चाहिए. सराउंडेड द टेम्पल. नेक्स्ट ऑल वॉज ग्रीन एंड पीसफुल. ऑल वॉज ब्राइट एंड गे. व्हाट डज इट सजेस्ट? ग्रीन है, शांतिपूर्ण है, ब्राइट एंड उज्जवल और खुशियों से भरा, हैप्पी एटमॉस्फेयर है. उसको हम लोग बोलेंगे कोजी, कंफर्टेबल, राइट?
peaceful. Next, number 3, which word in the passage is opposite of city? जैसे कि मैंने कहा था आपसे in the very first sentence, see, we went for a walk in the country. country का दो अर्थ होता है, एक होता है देश और दूसरा अर्थ होता है ग्राम्य या फिर ग्रामीण क्षेत्र, country. सो ये ऑपोजिट ऑफ सिटी, सिटी का ऑपोजिट है, सिटी यानी कि नगर क्षेत्र, उसका ऑपोजिट होगा कंट्री, ये शब्द, ठीक है. नेक्स्ट, प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल. हैड फिनिश्ड है, हैड फिनिश्ड हर लंच, दोनों जो पास्ट का पास्ट बोलते हैं, एक पास्ट में हुआ है तो एक उससे भी पहले. तो पहले क्या है कि प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल, ये बेल बजने से पहले उसने जो है अपना लंच ख़त्म कर लिया था, ये पहले हुआ. लंच फिनिश करना ये पहले हुआ और फिर बेल बजने वाला बाद में हुआ. सो प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल रैंग, ये होगा. पास्ट ऑफ पास्ट, ये पास्ट में है, रिंग का पास्ट टेंस है रैंग, तो हैड फिनिश्ड उससे भी पहले ये प्रिया ने अपना लंच कंप्लीट कर लिया था, ठीक है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, पीपल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच. हु वॉच देखते भी हैं और सुनते भी हैं, किसको? स्पीच को. ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? दिस इज़ अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन. सो ऐसे लोगों को हम लोग बोलेंगे ऑडियंस, राइट. ऑडियंस क्या करते हैं? ये पीपल होते हैं हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच. नेक्स्ट, rearrange the following word clusters to make a meaningful sentences. words jumbled up order में है, उसको सही क्रम में सजाकर सेंटेंस आपको बनाना है. we have the options here. this is the place, first look at this, was born I where the place is this. Option A, this is the place where I was born. where was I born? This is the place. the place is this, I was born where, and where I was born is the place this. ये पहला वाला सही है. दिस इज़ द प्लेस, ये वो जगह था, वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड. तो एक्सेसिबल सही है, एक्सेसराइज, फिर एक्सेसरी एंड एसेशन. एसेशन इज मिस स्पेल्ड. मिसस्पेल्ड मतलब जिसका स्पेलिंग गलत है. सो एसेशन में आई लगता है, ACCESSION. सो दिस शुड बी द रॉन्ग स्पेलिंग. द वर्ड एक्सेसराइज मीन्स टू डेकोरेट और इम्प्रूव द ब्यूटी ऑफ समथिंग यूजिंग सम फैशन एक्सेसरीज एट्सेट्रा. तो ये इसका स्पेलिंग सही है, ये वर्ब है एक्सेसराइज. एक्सेसिबल, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, राइट. स्पेलिंग इज़ करेक्ट. आपको पहचानना है कौन सा स्पेलिंग गलत है, तो ये वाला स्पेलिंग गलत है. इसमें एस के बाद एक आई लगता है, देयर इज़ एन आई विच इज़ मिसिंग हियर. सो दिस इज़ द रॉन्ग स्पेलिंग. दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर. वी विल इरेज दिस. ओके. Next question, fill in the gap with a suitable preposition. Ankit is worried dash his failure. Ankit worried है, चिंतित है, dash his failure. It should be about his failure. About his failure. Next, question number 9 to 10 में टेक्स्ट से लिया गया है लंचो से. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Starting up a correspondence
with God, starting up written communication with God. So that is an extract from a letter to God, right? The questions are, question number 9, you see, the postman showed to his boss. What did he show? He showed a letter. The postmaster was dash, fraud, amiable. postmaster कैसे व्यक्ति थे? A fat, amiable fellow लिखा हुआ है, तो that is your answer. Amiable यानी कि friendly. Next, question number 11 to 13. Choose the correct option to answer the following questions. Baking was indeed a profitable dash in the old days. So it was a profitable profession, right? It was a profitable profession in the old days. Okay, next question. Bodhidharma, a Buddhist, cut off his eyelids because dash. So this was about the third portion. द कुर्ग वाला चैप्टर से लिया गया है. बोधिधर्मा जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने अपने आईलिड्स काट लिए थे. क्यों? बिकॉज ही वॉज अ ल्यूनेटिक, पागल थे, स्टूपिड थे, बेवकूफ़ थे, ऐसा नहीं था. ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस. जब वो ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन करते थे, तो उनको नींद आ जाती थी. ऐसा ना होने पाए, दैट्स वाई ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, ताकि आँख ही ना बंद हो तो फिर उसको नींद नहीं आएगी. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजबिल द ऑटर से लिया गया है ये, वॉज नीदर हॉस्टाइल, ना वो हॉस्टाइल था, मीन्स एग्रेसिव, गुस्से वाला, राइट, और ना ही वो फ्रेंडली था. मिजबिल द ऑटर के बारे में ये है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 to 15. Read the given extract and choose the correct option to answer the following questions. The fog, poem से लिया गया है. The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. How does the fog come? It comes with little cat feet, like crocodile, like small frog, like ferocious storm. It comes slowly, silently, like little cat. Next, what does it refer to in the poem? it से क्या अभिप्राय है? यहाँ जो it है थर्ड लाइन में, it sits. So it is a pronoun which is used for the fog. The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city. It sits looking over harbor. The fog is looking at the harbor and the city. So it stands for the fog. It stands for the fog, not the cat. Cat is wrong. Next, choose the correct option to answer the following questions. What was Tricky's only fault? Right, this is from a triumph of surgery, right? वहाँ से लिया गया है. Tricky the dog, his only fault was he was greedy. His greed was his only fault. बहुत लालची था, हर समय खाता रहता था. Question number 17. Who came with a small bundle of notes one evening? So this is taken from The Thief. And who came, कौन आया एक नोटों की गड्डी हाथ अपने लिए एक शाम को? तो वो है अनिल. अनिल was a writer and he one day after selling a book to a publisher, he got a lot of money and he came with a small bundle of notes. Next, what was the real name of भोली? तो ये भोली चैप्टर से लिया गया है, K.A. अब्बास के. और भोली का रियल नेम क्या है? दैट इज एन इजी क्वेश्चन, सुलेखा. नेक्स्ट क्वेश्चन. I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. भोली says this to विशंबर नाथ, जो कि उनके पिताजी के एज के हैं. सो भोली इनसे जो है वो विवाह नहीं करना चाहती है क्योंकि वो दहेज मांगता है, राइट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20. वी इस्टेब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन द कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस. Actually, this is from the chapter The Book That Saved the Earth. So this chapter has been now
removed from your syllabus, so you don't need to worry about that. This year in 2025 you will not have a question from these two chapters. One is the book that saved the earth, and then another chapter which is removed is the 100 dresses. उस chapter से भी नहीं आएगा प्रश्न. So part A में इतना ही. Question number 1 to 20 सब MCQs हैं. Part B में you have unseen passage. Here we will read it some other day. Unseen passage है. What is passage पढ़ना है और फिर ये उत्तर देने हैं. Next, writing portion में write a letter to your younger sister telling her the disadvantages of watching television excessively. बहुत ज़्यादा अगर कोई टीवी देखे तो उससे क्या डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान है उसके बारे में. अथवा write an application to the warden of your school requesting him to provide facility of some indoor games. जो घर में बैठ के रूम में बैठ के आप खेलते हैं वैसे गेम्स को इंडोर गेम्स कहते हैं, जैसे कि चेस, ओके, जैसे कि टेबल टेनिस, जैसे कैरम. ये सारे इंडोर गेम्स खेलने की सुविधा आपको चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए हॉस्टल में. तो हॉस्टल के वार्डन को आपको लिखना है ये चिट्ठी. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ रिपोर्ट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स. टॉपिक दिया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स. यूजफुल हिंट्स सर, हिंट्स दिए गए हैं. यूजफुल फॉर लिविंग बिंग्स, प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स, कीप एनवायरनमेंट क्लीन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है, रोकता है. एंड प्रोटेक्ट, हाउ वी नीड टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट्स. ये सारे हिंट्स आपको दिए गए हैं. ये सारे पॉइंट्स आपके रिपोर्ट में होना है. अथवा राइट एन आर्टिकल ऑन अ विजिट टू अ जू. आर्टिकल और रिपोर्ट ये दोनों हम लिखेंगे बाद में. विजिट टू अ जू, उसमें हिंट्स दिए गए हैं. व्हेन यू विजिटेड इट, कब आप उस जू में गए. व्हाट यू सॉ देयर, क्या क्या आपने देखा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, राइट, हाउ यू एंजॉयड इट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये आपको लिखना है. उसके बाद सॉल्व करेंगे आज ग्रामर पार्ट. देखिए, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है. शीला सेड टू रोहित, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज़. शीला सेड टू रोहित, शीला रोहित से कहती है, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज़, क्या तुम अपना पढ़ाई जारी रखना चाहते हो. सो इसको किस तरह से लिखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रही है तो रिपोर्टिंग वर्ब उसको इस प्रकार लगाएंगे. विल राइट हियर दैट शीला आस्क्ड रोहित yes or no टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मतलब we can join it using if or whether. So शीला asked रोहित if he, you जो है वो बन जाएगा he, और wanted सिंपल प्रेजेंट टेंस है. do you want तो वो चेंज हो जाता है सिंपल पास्ट टेंस में. सो उसको करेंगे do if he wanted to continue his studies and full stop, right. Next next question, change the following into passive voice. इसको voice बदलना है. will you not attend the class, will you not attend the class. so ये होगा इस पर, will the class not be attended by you. Okay, will the class not be attended by you. See, पैसिव में बदलने का नियम क्या है, पहले तो अलग कर लेना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट इज you, verb is attend and object is class. नियम क्या है, the object
इन द एक्टिव वॉइस विल बिकम आवर सब्जेक्ट हियर. सो विल के बाद हम सब्जेक्ट को ला रहे हैं यहाँ, द क्लास, विल द क्लास, फिर नॉट को, फिर अटेंडेड, अटेंड को बी अटेंडेड लगा रहे हैं, और फिर द डूअर, यू को लास्ट में, बाय यू. विल द क्लास नॉट बी अटेंडेड बाय यू, इस प्रकार से. नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्चुएट द फॉलोइंग. इसमें पंक्चुएशंस लगाने हैं सही जगह पर. सो द बॉय सेड सर मे आई कम, मे आई कम. ये किस प्रकार का सेंटेंस है? दिस इज ऑफ कोर्स एन एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट स्पीच. सो इस प्रकार उसको लिखेंगे, द बॉय सेड, कॉमा लगाने हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, सर मे आई कम, right? Sir, may I come? Okay, that is how we are supposed to do. The boy said, sir, may I come? Next, translate the following into English. इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. मनीष अपने पिता का इकलौता बेटा है. इकलौता मीन्स ओनली, ओनली. सो इसको बोलेंगे मनीष, कैपिटल लेटर, मनीष is the Manish is the only son of his father. पिता का बोला गया है. मनीष अपने पिता का इकलौता बेटा है. मनीष इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर. फर्स्ट सेंटेंस इज कंप्लीट. नेक्स्ट, एक दिन वह अपने घर से बाहर गया. एक दिन, वन डे, वन डे ही, वन डे के बाद आप चाहे तो कॉमा भी दे सकते हैं. वन डे ही, एक दिन वह अपने घर से बाहर गया. वन डे ही लेफ्ट his house and went somewhere. He left his house and went somewhere. इसको आप और तरीके से भी कह सकते हैं कि he went out of his house, right? इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं इस प्रकार कि one day he went out of his house went out of his house. One day he went out of his house, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर सिंपली आप कह सकते हैं one day he went out, इतना भी लिख सकते हैं. तो दैट इज़ करेक्ट एक्चुअली. नेक्स्ट सेंटेंस, उसने अपने पिता की आज्ञा नहीं ली, नहीं ली. ही डिड नॉट टेक हिज फादर्स परमिशन बिफोर going out. Before going out, he did not take his father's permission before going out or before leaving home, leaving his house. Next, 3 घंटे बाद जब वो घर लौटा तो उसके पिताजी उससे काफ़ी नाराज़ हुए.
3 घंटे बाद जब वो घर लौटा, तो उसको लिखेंगे इस प्रकार, आफ्टर 3 hours, आफ्टर 3 hours, या फिर इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि 3 hours later, इस प्रकार भी बोल सकते हैं। दोनों में से कोई एक, दोनों मत लिखना, कोई एक ही लिखना, आफ्टर 3 hours या फिर 3 hours later, 3 hours later। जब वो घर लौटा तो उसको लिखेंगे व्हेन ही रिटर्न्ड होम, कॉमा, उसके पिताजी उससे काफ़ी नाराज हुए, हिज फादर वॉज वेरी एंग्री with him, right? His father was very angry, angry भी बोल सकते हैं, या फिर आप angry नाराज होने को upset भी बोल सकते हैं, you can say upset with him. So this is how you need to write the translations. There are more questions on literature, तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग आने वाले क्लासेस में, सेशंस में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो चला है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स, और इस चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल मेक श्योर दैट you do well in your exams, right? Thank you so much. Bye bye.